Now the beginning of international relations. Before 1918, IR did not exist as a separate subject. पढ़ा शुरू से ही आईआर के बारे में जा रहा है, लेकिन किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ दिया जाता था। लेकिन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को एज अ सब्जेक्ट 1918 के बाद बनाया गया था। 1918 से पहले क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी? टिल 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फिर क्यों जरूरत पड़ी इसको पढ़ने के लिए? स्ट्रेटजीज बनी कि पढ़ाओ लोगों को, तालीम दो, इस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट बनाए। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कब आया था? वो तो 16। अच्छा, ओके ओके। इसके बाद ओके, आफ्टर दैट क्या बनी थी? Although it was failed, but before United Nations, League of the Nation was there, and the purpose of this organization is to unite the countries. ठीक है? अच्छा, when in 1918, when this subject was introduced, so the first professor of international relations was from England. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज। All right. So issues now considered as part of international relations were seen as part of other subjects. अब ये कहा गया था कि जितने भी इश्यूज होंगे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम बात करेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सिर्फ बाहरी तो सीधा नहीं करना है ना, बाहरी तो ताल्लुकात नहीं बनाने, अंदरूनी मामलात भी हल करने हैं। अच्छा, अंदरूनी मामलात आपकी नजर में 1918 में क्या थे कि अंदरूनी मामलात क्यों जरूरी थे उस टाइम हल करना? एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गर्ल? आप बताइए बेटा, 1918 में क्यों जरूरी था कि इश्यूज जो इंटरनली हैं उनको भी डिस्कस किया जाए? ऐसे सोच के जवाब नहीं, इधर कोई किसी को मैं राइट और रॉन्ग नहीं कहूंगी, वट एवर कम्स इन टू योर माइंड, अपनी नॉलेज के तरीके से सोचे, बताइए कि क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान और मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही। एक जस्ट मिनट, if I tell you one thing off the record, Pakistan doesn't have international threat, Pakistan has national threats. अंदरूनी जब आपका मजबूत नहीं होगा, बैरूनी खतरों को तो आप बाद में देखें। You know, when in a house you are living with your siblings, with your parents, when you don't feel secure inside your home, so what will you do? Will you be able to perform well outside? When at home you have been humiliated all the time, जब घर में आपको कोई अहमियत वाला बच्चा ना समझा जाए, तो क्या आप बाहर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? So first confidence you get from your
home and from inside of your country. जब आपके मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स ही में आपस में कॉन्फिडेंस या आपस में उनका वो नहीं होगा, क्या कहेंगे, इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं होगा, तो दे वोंट बी एबल टू सी व्हाट इज गोइंग आउटसाइड. वो आपस में ही मसले मसाइल में फंसे रहेंगे. और जो आज पाकिस्तान बहुत हद तक पीछे हो रहा है और जो मजीद डिटेरिएशन की तरफ जाता जा रहा है, दिस इज द ओनली कॉज. मुल्क की अंदरूनी सियासत आपको जीने नहीं दे रही. अंदरूनी मसाइल से नहीं ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं तो बैरूनी मसाइल को कैसे देखेंगे. Nobody or no state of the world want to build relation with us. We have a simple example. Let's take an example of Pakistan. Because of the internal issues, we are trying to build our relation with India, but India has only one stance. They're saying that you have, first of all, you have to sort out your internal issues. And then, unless and until you will not sort out your internal issues, nobody or no state of the world will build relation with you. Nobody want to discuss with you. Nobody want to give you, let's take an example of Pakistani passport. Because of internal issues, nobody is, no state of the world is able to recognize you the passport of Pakistan. So it's mandatory, it's compulsory, it's important for state. First of all, you have to settle your internal issues. Once you will do it, then obviously you will be able to do business with the rest of the world. Just take the example from economic point of view. When you all the time have the terrorist attacks, when you all the time have strikes in your country and all that, so what do you think that international investors, are they going to invest something in our country or not? बैरूनी पैसा वो क्यों लगाए? उन्हें पता है कि कल को कहीं ना कहीं अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है तो हमारी तो कंपनी उड़ जाएगी, हमारा तो प्लांट ही उड़ जाएगा, तो हमारे तो $1 million और वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे. तो ये जब तक चीजें सेट नहीं होंगी, बिफोर दैट यू नीड ऑनेस्टी. और ऑनेस्टी सिखाई नहीं जाती है, खुद होती है अपने अंदर. ठीक है, ऑल राइट जी. ईमानदारी है, चलें, अच्छी बात है. आर यू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट? पहले तो बताएं ना, अपने आप से ऑनेस्ट हैं कि नहीं है? अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, मेरा ख्याल है कितनी एज होगी मैक्सिमम? हाईएस्ट 28 किसकी है? कोई है? 25 साल से सब नीचे हैं? 26, 27 के कितने हैं? बाकी सब नीचे नीचे हैं. तो 27, 28 लास्ट चांस है आपके पास, एक आध साल है. अब 30 हो गई है. अच्छा अच्छा, जब हमारे यूथ का टाइम था तो उस टाइम 28 था. आज से 25 साल पहले जब मैंने CSS की तैयारी शुरू की थी तो उस टाइम तो 28 साल थी. अब 2 साल बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात होगी. कोविड के बाद बढ़ी होगी. ठीक है, चलें जी. ओके, so if you want to write this point, you can write that issues now considered as part of international relations were seen as part of other subjects. For example, political theory, history, वही जो हम पहले बात कर गए वही आपको लिखवा रही हूँ. पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ, ये तमाम सब्जेक्ट हम इस चीज में पढ़ेंगे. ये वही सारी बातें जो पहले हम 10-15 मिनट के डिस्कशन में कर चुके हैं. ठीक है. I said that issues now considered as part of international relations were seen as part of other subjects: political theory, history, economics, and international law.
So international relations has begun as an attempt to jot down all the events. इस सब्जेक्ट में हम तकरीबन वर्ल्ड की तमाम जो वो वाले इवेंट्स हैं जिससे कुछ सोसाइटी में या रिलेशंस अमंग कंट्रीज पे इफेक्ट हुए हैं, आपको सब मिलेंगे. कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई. जी, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कह रही हैं, जोर से क्या? टूरिज्म. नहीं नहीं नहीं, टूरिज्म वाला जो आएगा ना, टूरिज्म से आपका क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है ना, इकोनॉमी आपकी इंप्रूव होती है. तो जितना टूरिस्ट आपके मुल्क में आएगा उतना आपके मुल्क में पैसा आ रहा है. ठीक है, आपका सिक्योरिटी लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर एक स्वीडन का कोई टूरिस्ट उठ के आ रहा है इस जगह से, तो अगर उसको यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो, अगर बिजनेसमैन अगर कोई विजिट करने आ रहा है तो ही विल सी एंड ही विल फाइंड अ सूटेबल लोकेशन फॉर हिज बिजनेस टू स्टार्ट. जैसे ये हमारे मुल्क में कौन कौन सी चल रही है? KFC चल रहा है, मैकडोनल्ड चल रहा है, जो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और खा रहे होते हैं, तो ये हमारे मुल्क की चीजें हैं. फूड पांडा हो गया. फूड पांडा तो अपना ही है कि वो कहाँ से आ रहा है. फूड पांडा इज जस्ट अ सर्विस. अच्छा, जहां तक क्वालिटी की बात कर रही हैं ना आप, क्वालिटी में ये होता है कि दे हायर लोकल्स. लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, तो जो शेफ्स होते हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, वो आपके अपने ही शेफ्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं वहां पे करें. तो इसलिए भी थोड़ा फर्क हो जाता है. फिर हम एशियंस का कुकिंग स्टाइल भी डिफरेंट है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे आगे बोलने, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही. या माइक नहीं है आपके पास? वहां पीछे माइक है. हाँ हाँ, व्हाई नॉट. क्यों नहीं आती हैं? कोर्स में ही आती है, बाहर कैसे हो सकती हैं? अब कश्मीर के इशू को आप देखेंगे, आप उसमें डालते हैं ह्यूमन राइट्स के एक्ट को. ठीक है जी, बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये कर रहा है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं. ठीक है, आप अगर बाहर की प्रोडक्ट्स का कहते हैं जिसमें MNCs का कॉन्सेप्ट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से आप पढ़ते हैं, आप NGO का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, आप एक एक चीज IR में पढ़ रहे होते हैं. आप देखें, अगर थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को पढ़ें, सिर्फ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग से हटा के, आप सिर्फ ये देखें कि भाई देखें, आजकल चीजें, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है. आप अगर अभी जाके गूगल करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इट टेल्स यू मैनी थिंग्स. ठीक है,
आप उसको पढ़ लें, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट। देखें, मैं पिछले 22 साल से दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ, 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो मैं अपने हर किस्म के स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम सिर्फ टारगेटेड टीचिंग करते, स्टडी करते हैं कि पढ़ लिया, प्लीज थोड़ा सा सुन लें, शायद कोई बात मेरी, कोई एक जुमला कहीं किसी की जिंदगी में कोई चेंज ले आए। हम जब भी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ टारगेटेड पढ़ते हैं, इम्तिहान दिया, इम्तिहान में पास होना है बस। कभी भी हम उस चीज को एज ए स्किल नहीं पढ़ते हैं कि इससे हमें आएगा कुछ। अगर आयर आप सीएसएस में नहीं भी अपेयर करते हैं, नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा कि जबरदस्ती आपने आयर पढ़ना है। लेकिन अगर इस सीएसएस की तैयारी के दौरान आपने इंटरनेशनल रिलेशंस या कोई और सब्जेक्ट इंटरेस्ट लेके पढ़ा, तो बाद में जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे होंगे, व्हेन यू ऑल बिकम प्रोफेशनल, तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज फायदा देगी। एक दफा किसी ने कहा, ये सोशल मीडिया पे ही बहुत हो रहा था, मैं वही शेयर कर रही हूँ, कि हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें 100% नहीं याद रहता। ये मेरे ख्याल है शायद अगर आप लोगों में से किसी ने गो थ्रू की होगी, तो मैंने भी चलते चलते उसमें देखा कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो वो हमें 100% याद नहीं रहती है। ऐसे ही है, जाहिर सी बातें नहीं रहती। लेकिन अगर मुझे बताएं कि अगर कोई भी किताब आप लोगों ने अपने सिलेबस के अलावा अगर कोई पढ़ी है तो मुझे बताइए, पढ़ी है या नहीं? फर्स्ट टेस्ट में आपने पढ़ी है? मुझे ये बताएं कौन सी किताब पढ़ी है? अच्छा, आपने? अच्छा, आपने जो भी किताब पढ़ी है आपको 100% नहीं याद है, उसमें से कुछ 1% चीज याद है आपको? क्या? अच्छा, किसी एक कैरेक्टर ने कोई आपकी जिंदगी को टच किया? देखिए, जब आप किताब पढ़ते हैं ना, चाहे उर्दू जबान में पढ़ें चाहे अंग्रेजी जबान में पढ़ें, कुछ किताब कुछ चीजें आपके माइंड के लिए होती हैं, कुछ आपको जिंदगी का आगे रास्ता बताती हैं, कुछ किताबें आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करती हैं, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो आपको ये बताती हैं कि आपने लोगों से मिलना कैसे है। जैसे आप लोग जो मोटिवेशनल लेक्चर्स अगर सुनते हैं, या ना भी अगर अभी आपका सुना हो, क्योंकि अभी आपकी इतनी एज नहीं है, और इस एज में इंसान सिर्फ एंटरटेनमेंट की और कुछ नहीं सोच रहा होता, बट व्हेन यू क्रॉस योर 30 you will realize so many things in your life. There you see how you have to deal professionally, और जब आपका बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप पे पड़ता है तो देन यू रियलाइज। तो जब आप कोई भी चीज किताब पढ़ते हैं, या जो कोई भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस या कुछ भी पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी लाइफ में। अगर अंग्रेजी के कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि वो नॉवेल्स पढ़ लें, ठीक है, कुछ लोगों को, जैसे गर्ल्स को फैशन से बहुत दिलचस्पी होती है, तो आप लोग इंटरनेट पे ड्रेसेस देख रहे होते हैं, ठीक है, तो कि कौन से शूज आ रहे हैं, तो वो शूज क्या होता है, वो आपको उसके नाम भी बता रहा होता है कि ये वाला जूता ये कहलाता है, ये वाला ये कहलाता है, ये वाला ये कहलाता है, ठीक है। वैसे तो आप जूते देख रहे होते हैं कि हम कौन से ऑर्डर करें, कौन सा ऑर्डर करें, लेकिन साथ साथ जूते देखने खरीदने के अलावा एक और चीज भी हो रही होती है, दैट इज योर लर्निंग, ठीक है। आपको पता चल रहा होता है, जैसे हर जूता एक नाम तो नहीं है ना, कोई पिशावरी चप्पल है, कोई कोलापुरी चप्पल है, तो कोई सैंडल है, तो कोई जॉगर्स है, तो कोई शूज है, तो कोई कुछ है, ऐसे ही है। तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ बताती है। इसी तरह आपका ये सब्जेक्ट भी है, नॉट ओनली आयर, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं सबका यही पर्पस है। ओके, द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ, अब आईआर में हम बेसिकली पढ़ते किस किस के बारे में, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो आईआर बेसिकली स्टडी अबाउट स्टेट्स, नंबर 2 आईजीओस क्या है, ठीक है, नहीं लिखूं, ऑल राइट, क्या है बताइए?
नहीं नहीं, इनको कह रही हूँ। आप बताइए, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आप पढ़ते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। कौन सी है हमारे मुल्क में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस? यूनिलेवर, नेस्ले। तो इन सब का हमसे क्या ताल्लुक है? इन सारी कंपनीज का हमसे क्या ताल्लुक है? Okay, so we study about states, IGOs, international NGOs and MNCs.